کا آدھا پیسہ وہ اپنے گھر چمکانے کے لیے لے جا رہے ہیں. اگر گھر پہ لے کے جا رہے ہوتے تو یہاں پہ گوشت کا لنگر نہیں ہو رہا ہوتا. گھر چلا رہے ہوتے مقصد اپنے گھر سے جو ہے وہ راشن لا کے نہیں دے رہے ہوتے. خدا کی عزت کی قسم ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا اور یہ انجمن غلامان رسول کی طرف سے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا ماشاءاللہ. اور ہر سال اسی طرح کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں اور شاہ صاحب کو ماشاءاللہ پورا 553 بلکہ پورا نارتھ کراچی جانتا ہے. شاہ صاحب اپنی محبت اور پیار اسی طرح پورے 553 میں پورے نارتھ نچھاور کرتے رہتے ہیں ہم دل عزیز اور عاشقان رسول پر ماشاءاللہ. ہر جمعرات کو ان کے گھر پر ان کے آستانے میں میلاد کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے. لیکن آج ہمارا جو مین مقصد ہے ان سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ انجمن غلامان رسول جو کمیٹی ہے جو یہ آرگنائزیشن ان لوگوں نے بنائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ. ناشتہ بھی کراتے ہیں حلوہ پوری کا. افطار میں رمضانوں میں افطار وغیرہ کا بھی پروگرام یہ لوگ سیٹ کرتے ہیں. لیکن آج جو ہم بالخصوص سوال کرنے والے ہیں وہ انجمن غلامان رسول کے حوالے سے. تو شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ الحمدللہ. شاہ صاحب یہ جو انجمن بنی تھی یہ کب بنی تھی؟ یہ 86 میں ہمارے بڑوں نے بنائی تھی. بزرگوں نے علاقے کے بزرگ تھے انہوں نے یہ 86 کے اندر انجمن بنائی تھی. اچھا اصل میں مقصد یہ تھا ان کا کہ یہ جو انجمن بنائی تھی یہ جو عاشقان رسول ہیں اور یہ جلوس وغیرہ لے کے نکلتے ہیں اور ہمارا اہل محلہ ہے ان تک لنگر پہنچانا. تو یہ لنگر پہنچائے سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہے یہ کمیٹی بنائی تھی ماشاءاللہ. اچھا اس کا اہم میں اندازہ لگا سکا وہ اہم یہی تھا کہ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں حضور سے چاہت رکھنے والے جو لوگ ہیں یا جو غریب ہیں غربا ہیں جو مطلب جیسا بھی ہے سب کو محبت رسول میں لنگر کا اہتمام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو اس عشق کی پیشگی اس طرح کی جائے کہ حضور کے نام پر لنگر پیش کیا جائے. الحمدللہ. تو یہ جو آرگنائزیشن بنی 1986 کے اندر تو میں نے یہ سنا کہ بیچ میں ایسا ہوا تھا کہ یہ آرگنائزیشن بیچ میں یہ جو انجمن ہے یہ ٹوٹ گئی تھی ختم ہو گئی تھی. تو اس کا کیا ریزن تھا؟ یہ حضرت اس کا ریزن اللہ نہ کرے کوئی ایسا نہیں تھا. بس معاملہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے علاقے کے بزرگ تھے انہوں نے یہ انجمن بنائی تھی تو الحمدللہ اس کے اندر بڑی معزز شخصیات موجود تھی. لیکن جب ان کا وصال ہوا ان کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد ان کے جو بچے تھے یا محلے کے جو بچے تھے تو وہ ذرا کم عمر تھے. تو جب تک ان میں شعور آیا تو وہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا اور جیسے ہی شعور آیا تو الحمدللہ پھر یہاں پہ سحری کا اہتمام شروع کروا دیا گیا. اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا قورمہ بنوانے کے لیے باہر سے بندہ آتا تھا وہ قورمہ بناتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں پہ الحمدللہ یہ 12 ربیع الاول کا دن کا لنگر شروع کرا اور یہ 1 دیگ سے شروع کرا تھا. آج الحمدللہ یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے 36 دیگیں موجود تھیں ماشاءاللہ. 36 دیگیں موجود تھیں. اچھا 36 دیگیں ہیں. اس کے اندر انجمن غلامان رسول کے جو 16-17 ممبر ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کیا ان کے علاوہ بھی آپ کو باہر سے مدد ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہ ایک مدد تو نہیں ہے اور مدد تو مستحق کی کری جاتی ہے اور الحمدللہ سرکار کا جو لنگر ہے وہ مستحق نہیں ہے. سرکار کا لنگر مستحق نہیں ہے بلکہ اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس سرکار کے لنگر میں شامل ہوتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے شامل ہوتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کیونکہ آج کل جو چل رہا ہے فراڈ آیا پاکستان میں پورا سیلاب آیا آپ نے دیکھا
बड़े लोगों ने बड़ी मदद भी की लोगों की, लेकिन कुछ लोगों की वीडियो ऐसी वायरल हुई जो लोगों ने जो है वो अपने घर चमका दिए, राशन अपने दोस्तों यारों में रिश्तेदारों में बांटना शुरू कर दिया। तो मैंने ये सुना है कि अंजुमनें जो बनती हैं अक्सर, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हो या मुहर्रम के क्या नाम है दस्तरखान लगते हैं, तो मौला हुसैन के नाम पे जो लंगर बांटा जाता है सबीले लगती हैं, उसका आधा पैसा वो अपने घर चमकाने के लिए ले जाते हैं। नहीं, आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, आपको शायद इस बारे में पता नहीं है कि ये जो अंजुमन होती है ना, और ये जो आका इनामदार का नाम लेके चलते हैं, ये अपने घर के जो भी ना खर्चे रोक कर और फिर अंजुमन के अंदर लगा रहे होते हैं। आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, और अगर घर चला रहे होते हैं तो मकसद अपने घर से जो है वो राशन ला के नहीं दे रहे होते, अपने घर के राशन के पैसे में से बचा के यहाँ पे लंगर नहीं कर रहे होते, और एक देख से 36 देगों पे नहीं आ जाते। छोलों की देख से जो है अपने जानवर नहीं काटने शुरू कर देते, अपने घर पे नहीं लेके जा रहे। अगर घर पे लेके जा रहे होते तो यहाँ पे गोश्त का लंगर नहीं हो रहा होता, आलू का ही लंगर हो रहा होता, तो छोले ही डल रहे होते हजरत। तो ये आलू छोले की बिरयानी से जो है ये यहाँ पे अपने जानवर जो कट रहा है, ये बता रहा है, ये चीख चीख के लंगर बता रहा है कि घर नहीं ले जा रहा है, बल्कि अंजुमन के लोग अपनी जेब से ला के भी लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आप माशाल्लाह पिछले साल में जब यहाँ मौजूद था, इस साल तो खैर मुझे मौका नहीं मिला, कि आप लंगर के अलावा भी अपनी जेब से लोगों को हदिया कहें या बख्शिश कहें, जो भी कहें, मतलब 10-10, 20-20 रुपए जितने भी लंगर खाने वाले हजरात थे उनमें तकसीम कर रहे थे। तो इसका क्या मेन मौक़िफ़ था? असल में मसला ये है कि मेरे नज़दीक, हमारे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के नज़दीक, और जो भी अपने नबी को हयात मानता है उसके नज़दीक, और कुरान और हदीस से भी है कि जी ये जो है ना, ये ईदों की ईद है, और ये आप बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे, आपको ईद पे ईदी मिलती है, आपके बड़े ईदी देते हैं, और ये मोहब्बत का एक तकादा होता है, और हमें ख्वाहिश भी होती है कि ईदी मिले, और ये जुम्मा भी ईद का दिन है, और ये तो ईदों की ईद है, जिनके सदके ईद मिली, जिनके सदके रमजान मिला, जिनके सदके सब कुछ मिला, जुम्मा मिला, ये उनके सदके हमें, ये उन्हीं का दिन है। तो ये ईदी बांटने का एक निज़ाम होता है, बच्चों को ईदी बांट रहे होते हैं, उसमें बड़े भी ले रहे होते हैं, और ये सबकी मोहब्बत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदी बांट रहे होते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आस्था ने चिश्तिया की जानिब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईदी का लंगर माशाल्लाह। देखें, हमें इस चीज़ से यही सबक मिलता है कि हुजूर पाक की चाहत में, और ईद मिलादुन नबी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम कि 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद है बेशक, तो हमें यही सबक मिलता है कि हम इसको पुरजोश तरीके से मनाएं, बल्कि ईद जिस तरह मनाई जाती है उससे ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाया जाए, क्योंकि हुजूर की विलादत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये भी कहूँगा कि शाह साहब, काफ़ी लोग ऐसा भी है कि बिल्कुल जो आप बात कर रहे थे कि मुझे गलत बिल्कुल ब्रीफिंग मिली है, मैं लोगों तक आपके तहत ये मैसेज पहुंचाना चाहता था कि जो अंजुमनें काम करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक अंजुमन का हिस्सा हैं, और जितनी भी अंजुमनें काम करती हैं वो हुजूर की चाहत में ही काम करती हैं अपना दिन रात। कल रात शाम 7 बजे से मैं देख रहा हूँ कि सारे लड़के 19-20 लड़के इस अंजुमन के, जो सारे लड़के शाम 7 बजे से लगे हुए, रात पूरी सेटिंग करी, उसके बाद जानवर कटा, जानवर कटने के बाद उसका गोश्त आया, फिर देगे चढ़ी, सब कुछ हुआ। तो ये सारी मोहब्बत का ही आलम होता है। ये अभी खत्म नहीं होगा, ये रात के 12 बजेंगे अभी यहाँ पे सफाई करते करते, ये सारे मामले करते करते ये रात के 12 बजेंगे माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लड़के इसके अंदर मौजूद हैं जो अपने घर में उठ के पानी नहीं पीते, लेकिन ये इश्क के मुस्तफा के अंदर यहाँ पे झाड़ू भी लगा रहे होते हैं, यहाँ पे दरिया बिछा रहे। बिल्कुल, मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा जो शाह साहब ने कहा कि झाड़ू भी लगा रहे हैं, बेल्टे से मट्टी भी हटा रहे हैं। ये इश्क की बात होती है, और इश्क का वो लड़के हैं जो अपने घर में पानी नहीं पीते उठ के, होगा ऐसा हुजूर के नाम पर जो यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। तो शाह साहब, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी अंजुमन के लिए? अंजुमन के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप तमाम लोग अंजुमन का साथ भी दें, दुआओं में भी याद रखें, और बस ये दुआ करें अल्लाह पाक उरूज और तरक्की अता फरमाए, शरीरों के शर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। और एक छोटा सा शेर कहूँगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारज नजदीके कले गिराते जाएंगे। और ये अंजुमन को छोटा ना समझें, ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5B3 में नहीं, इंशाल्लाह पूरी दुनिया में राज करेगी। जिसको हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, जब तक दिया वो न जले उजाला ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इसके रसूल के अंदर ये जो काम हो रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है। अच्छा, हाँ बिल्खुसूस मैं आप लोगों को एक मैसेज, और ये सवाल मेरा रह गया था तो मैंने इनसे पूछना था। सबसे पहले सदर साहब से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जो अंजुमन के पुराने लोग थे जो इस दुनिया फानी से कोच कर चुके हैं, उन लोगों के नाम थोड़ा सा आप बताएं ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वालों को पता चल सके। हजरत उस्मान वारसी साहब थे, और एक अमीरुद्दीन साहब थे, और दीगर और भी 5 के अरकान थे, 6 जिनका विसाल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका कैमरा दिखा सके तो सामने हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तस्वीरें लगाई हुई, माशाल्लाह, बिल्कुल। हमने अपने बड़ों को अपने सर पे ही रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनका साया अभी भी हमारे ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के मातहत तरह के काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजुमन का नाम है अंजुमन गुलामान रसूल। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गुलामी का दर्ज दिया जाता है, और जो अंजुमन के साथ मिलता है वो गुलाम बनता है। और आपके उस वाले सवाल का कि अंजुमन के लोग पैसे खाते जाते हैं या घर चलाते हैं, गुलामी मातहत रहने का काम है।
हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मातहत रह के काम करते हैं, तो हम कुछ खाते नहीं हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, हमें खाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की जो सांसें चल रही हैं ये भी हुजूर के सदके ही हैं। सुभान अल्लाह। तो ये माल के आगे क्या करेंगे? हमारी नौकरियां, हमारी जानें, हमारे माल, हमारी औलाद, सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान सुभान है, अल्लाह। और हम गुलाम हैं। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजुमन का नाम भी गुलामान रसूल है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी जो आपकी इस जमात के, इस अंजुमन के अमीर हैं, सदर साहब हैं, वो कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त में मौजूदा हमारे सदर साहब जो हैं हाजी सलाउद्दीन साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नायब सदर साहब जो हैं वो हमारे इरफान वारसी साहब, माशाल्लाह। वो उस्मान वारसी साहब के साहबजादे हैं। साहबजादे माशाल्लाह। इरफान वारसी साहब से मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनसे भी इस तरह एक रिव्यू ले लूँ, उनका एक इंटरव्यू ले लूँ, लेकिन माशाल्लाह इतनी मसरूफियात है लंगर खिलाने में कि अब तक टाइम नहीं मिल सका। तो हमने कहा शाह साहब को पकड़ लेते हैं। शाह साहब भी बहुत पुराने हैं, लेकिन शाह साहब ये बताएं कि अमीर साहब जो हैं, जो अंजुमन के सदर हैं, वो आपको कैसे लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट बहुत ज़बरदस्त और बहुत दिलो जान से कोशिश करते हैं। यकीन करें कि अभी मैं ये लंगर देख रहा था कि जिस तरीके से वो हड्डियाँ और नलियाँ जो उसकी तमाम लवाजमात पड़े हुए थे ना, तो वो देख के पता चल रहा था कि इनकी मोहब्बत और खुलूस कितनी पुरजोश तरीके से उन्होंने खुलूस से मोहब्बत से जाके जानवर लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जानवर के अंदर से जो उसकी हड्डियाँ इतनी आला थी, तो सोचो गोश्त कितना आला होगा। नहीं, हमने चखाए, हमने लोगों के रिव्यू भी लिए जो आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दिखाएंगे। माशाल्लाह इमाम साहब ने खुद शिरकत की रैली से आगे, ये भी एक एजाज की बात है। बड़ी मेहरबानी आपकी शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। करीम क़यामत तक हमें 12 रबी अव्वल मनाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम सरकार का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमा। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह लंगर चल रहा है, और ये हमारे साथ माशाल्लाह उम्मीद है नाम मुझे उसका हमेशा भूल जाता हूँ। पिछले व्लॉग में भी इसका नाम मैं भूल गया था, हालांकि अक्सर मेरे साथ रहता है, लेकिन इसका नाम भूल जाता हूँ। भारत बड़ी मेहनत करी है। देख रहे हैं आप लंगर खिला के बेचारे पसीनों हो गए, और सादिक भाई भी माशाल्लाह लंगर पूर्ण हो गए। लंगर जाके सुकून से बैठे खा लिया। जबरदस्त लंगर कैसा था, टेस्ट बताइए। बेहतरीन। कुछ कहना चाहेंगे लंगर के बारे में आप? बहुत अच्छी थी, बोटियाँ कैसी थी? बोटियाँ कैसी थी? मिक्स थी, अच्छी थी। अरे जी माशाल्लाह, पहला रिव्यू मिला है जिसने तारीफ की है। वैसे तो लंगर की तारीफ हर कोई करेगा, अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह, हमने भी चखा है, लेकिन ये है कि आगे देखते हैं और लोगों से रिव्यू लेते हैं। ये यासिर भाई हैं हमारे, ये भी अंजुमन का हिस्सा है माशाल्लाह, ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यासिर भाई कैसा फील हो रहा है आपको ये करने के बाद? माशाल्लाह से बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बहुत खुशी फील हो रही है कि जिसने विलादत की खुशी के अंदर यहाँ लंगर हो रहा है, और बहुत सारे बंदे जो लंगर खाते हैं और हर साल खाते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आप लोगों का और सपोर्ट चाहिए कि और मज़ीद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। माशाल्लाह इन्होंने अपील कर दी है लंगर के लिए कि आप लोग सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इस लंगर को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे और लोगों से रिव्यू लेते हैं।
یہ بھی کمیٹی کے ممبر ہیں, تشلے لے کے آ رہے ہیں, خالی تشلے, لیکن ماشاءاللہ محنت بہت کے تمام. یہ بھی لنگر کھانا ہے ماشاءاللہ, یہ وہی ہے. ملا ہم لوگوں کو کھانے کو, دانش بھائی کی مہربانی کھلایا ایک دفعہ بھی نہیں ہے. نہیں, میں کھلا نہیں رہا تھا, میں صرف کور کر رہا تھا کون کتنا کھا رہا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کیسا تھا لنگر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, دیکھتے ہیں اور آگے لوگوں سے ریویو لیتے ہیں. یونس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. یونس بھائی, عاشقان رسول کے لیے اور ریلی کے تمام ممبران کے لیے یہ لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا, آپ اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے, کیسا لگا آپ کو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکتیں عطا فرمائے, اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ سرکار کے صدقے اور طفیل یہ دسترخوان قیامت تک بچھا رہے. آمین اور آمین. عاشقان مصطفیٰ اس سے مستفید ہوتے رہے, اور سرکار ان کے جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام. تو ویڈیو دیکھنے والوں سے ایک ہی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹس کریں, اور اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. انجمن کا حصہ بننے کے لیے, انجمن میں شامل ہونے کے لیے ہم نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ ان کے کانٹیکٹ نمبر دے دیے, بالخصوص ان سے رابطہ کیجیے گا. اس سلسلے میں ہمارے کامنٹ باکس میں کامنٹس مت کیجیے گا. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.